نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ معراج کی رات ہے، جبریل امی نور کی بارات کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے محبوب کے گھر کے چھت پر آ کر کے رکے۔ آقا دو عالم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امی نے دیکھا، کہا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، جگاؤں کیسے، نام لے لوں؟ تو عالم غیب سے آواز آنے لگی، جبریل امی میں اس کا پیدا کرنے والا، میں اس کا مالک، میں اس کا خالق، میں نے آج تک میرے محبوب کا نام نہیں لیا، تو کیسے لے سکتا ہے؟ کہا جبرائیل کیا تمہیں یاد نہیں، تیرے ہاتھ میں قرآن جاتا رہا، تو قرآن لے کر کے جاتا رہا، میں نے جب بھی قرآن میں کسی کو پکارا ہے، آدم کو میں نے پکارا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ابراہیم کو پکارا تو یا ابراہیم کہہ کر کے پکارا، ہر نبی کو میں نے نام لے کر کے پکارا، لیکن جب محبوب دو عالم کی باری آتی ہے تو میں کہتا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے پیارے محبوب میں نے کبھی آپ کا نام لے کر نہیں پکارا، جبرائیل تو خادم ہو کر کے میرے نبی کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ کہا مالک پھر کیسے جگاؤں، تھوڑا ہلا دوں؟ کہا نہیں، میں نے تیرے کافوری لب کس لیے بنائے ہیں، ذرا مچل کے، اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سنیں گے، ذرا مچل کے کہو مسلمانوں سبحان اللہ۔ کہا تیرے کافوری لب کس لیے بنائے ہیں، لگا میرے محبوب کے تلوے پر ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل امی نے تلوے پر اپنے ہونٹوں کو لگایا، پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیغمبر بیدار ہو گئے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے بارہا ان باتوں کو عالموں سے سنا ہے، پھر بھی آج مجھ سے سنو، لیکن ایک الگ رنگ میں سنو، تاکہ اس سے آپ کا ایمان اور عقیدہ صاف ہوتا چلا جائے۔ جبریل امی نے حضور کے تلوے کو چوما، حضور بیدار ہو گئے۔ ہر عالم یہی بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن میں تھوڑا دیوانہ آدمی، میں الگ طریقے سے نبی کی محبت کو دیکھتا ہوں۔ میں نے جب جبریل امی کو حضور کے قدموں تلے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو اپنی دیوانگی بھری مستی خیال سے جبریل امی سے سوال کرتا ہوں، اے جبریل امی ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کے باغات کو دیکھا، آپ نے جہنم کو دیکھا، آپ نے حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، کہکشاں کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، آپ نے روئے زمین میں جتنے نبی آئے تمام نبیوں کو آپ نے دیکھا، ان کے معجزوں کو دیکھا، لیکن اے جبریل امی جب آپ نے میرے آقا کے قدم کو چوما تو کوئی مزہ بھی ملا، کوئی لطف بھی آیا؟ تو جبریل امی فرماتے ہیں دیوانے سننا چاہتا ہے تو سن، میں نے مشرق کو دیکھا ہے، میں نے مغرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے کوہ طور پر موسیٰ کو باتیں کرتے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمان پر پرواز کرتے دیکھا ہے۔ جبریل امی فرماتے دیوانے میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے جسے دیکھنے والیاں اپنی انگلی کٹوا بیٹھی پاگل ہو گئی، میں نے اس کے بھی جلوے دیکھے ہیں، لیکن نہ پھولوں میں دیکھا ہے، نہ پھولوں میں دیکھی، نہ کلیوں میں دیکھی، نہ نبیوں میں دیکھی، نہ ولیوں میں دیکھی، مزہ جو محمد کے تلیوں میں دیکھی۔ حضرات توجہ چاہوں گا، جبریل امی براق لے کر نبی کے پاس پہنچے، کہا آقا وضو فرما لیجئے، براق جنت سے آپ کے لیے لایا گیا ہے۔ توجہ ہے حضرات، ایمان و عقیدہ صاف ہو جائے گا، ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ صرف معراج کا واقعہ نہیں، ایمان کو تازہ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس دور میں لوگ بہت ٹیکنالوجی پہ آگے بڑھ چکے ہیں، تو ایمان کے لٹیرے بھی اب صاف صاف انکار نہیں کرتے کسی چیز کا، وہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے، تو ایمان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فرمانے کے بعد محسن انسانیت
सैयदुल मुरसली सैयदुल मलाइका मोहम्मद अरबी जनाब पाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक की तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही बुराक ने मेरे नबी को देखा, कहा सैयदुल मुरसली आ रहे हैं, नबियों का इमाम आ रहा है और मुझ पर सवार होने वाला है। बुराक मस्ती में झूमा, बुराक मस्ती में कूदा। झूमना और कूदना था, जिब्रील अमीन ने लगाम पकड़ कर कहा बुराक कूदना बंद कर दो, खामोशी के साथ खड़े हो जाओ, ये और कोई नहीं रब का महबूब आ रहा है। गोया जिब्रील अमीन ने आने वाली नस्लों के लिए दर्स दे दिया कि जब मोहम्मद अरबी की बात आ जाए, दरूद पढ़ने की बात आ जाए, जब मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की बात आ जाए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की आमद आ जाए, तो सुन्नियों के तरह खड़े होकर के अदब से खड़े हो जाओ। यहाँ पर इतरा कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सलाम पढ़ो, दरूद पढ़ो तो खड़े होकर अदब से पढ़ा करो। ये हम नहीं कहते, जिब्रील अमी फरमा रहे। हज़रात तवज्जो चाहूँगा, मेराज की रात है। आपने बारहा उलमाए किराम से सुना है कि हुजूर मस्जिद अक्सा पहुँचे और तमाम अंबिया किराम को अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई है कि नहीं हज़रत? ज़रा तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बातें इतनी खामोशी के साथ नहीं सुनी जाती। तो आका मस्जिद हरम से निकले, मस्जिद अक्सा पहुँचे, लेकिन आपने उलमाए किराम से सुना है कि आका के पहुँचने से पहले ही तमाम अंबिया किराम वहाँ पहुँच चुके हैं। नुक्ता हज़रत तवज्जो चाहूँगा, बड़े मेहनत से नुक्ता निकाला गया है। तमाम अंबिया किराम पहले से पहुँच चुके हैं। हुजूर ने नमाज पढ़ा दी। ऐ लोगो, मेरे प्यारे पैगंबर नमाज पढ़ा दिए। प्यारे पैगंबर ने लोगों तमाम नबियों की इमामत फरमा दी। इमामत कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। अच्छा अली मोहल्ला के लोगों, ज़रा दिल पे हाथ रख कर के कहना, क्या कभी किसी मुर्दे को आपने नमाज पढ़ते हुए देखा है? क्या मुर्दे के ऊपर नमाज है? नहीं, मर गया, नमाज से छुट्टी हो गई, अब वो नमाज नहीं पढ़ता। दुनिया का चाहे कितना बड़ा आलिम क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा पीर मुफ्ती फ़कीर आ जाए, सब यही जानते हैं कि मरने के बाद नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज नहीं है। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा ने तो अंबिया किराम को नमाज पढ़ाई है। ज़रा मचल के तवज्जो के साथ ज़हन को हाजिर रखो। प्यारे पैगंबर ने नमाज पढ़ा दी, अंबिया किराम नमाज पढ़ लिए, तो मरने के बाद तमाम अंबिया किराम अपनी अपनी कब्रों में, डिफरेंट कंट्री में, अलग अलग जगहों में, सबका अराइवल अलग है, सब अलग अलग कब्र में अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, अपनी अपनी कब्र में लेटे हुए हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम को बुला करके नमाज पढ़ा दी है और तमाम नबियों ने नमाज पढ़ ली है, इसलिए कि आने वाली नस्लें किसी नबी को मुर्दा ना समझ सके। और तमाम अंबिया किराम ने नबी को इमाम बनाकर उनके पीछे नमाज पढ़कर आने वाली जमात के लिए जो नबी को मुर्दा समझते हैं उनके गाल पर कसकर तमाचा मारा और ये कह दिया कि जब आखिरी नबी के मुक्तदी का आलम यह है कि वो अलग अलग कब्रों से उठ करके मस्जिद अक्सा पहुँचे और हुजूर के पीछे नमाज पढ़ ले, जब ये मुक्तदी का आलम है तो उनके इमाम का क्या आलम होगा, उनकी ज़िंदगी का क्या आलम होगा। ज़रा तवज्जो से कहना। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तवज्जो है हज़रात, ईमान को पुख्ता करिए। अब बात आती है इल्म गैब की, ये भी मेराज के वाक़या से ही मैं हल कर दूं। अच्छा, कुछ दिन पहले धामनगर शरीफ का उर्स हुआ, हम लोग पहुँचे, बड़ा हुजूम हुआ, इतने लोग पहुँचे कि ट्रैफिक जाम, 2.5-3 घंटा तक लोग वापस ना निकल पाए, सारे लोग वहाँ पहुँचे। मुजाहिद मिल्लत कमेटी ने ऐलान करवाई थी, बैनर छपवाया गया, पोस्टिंग की गई, होर्डिंग किया गया, लोगों को बताया गया। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना,
मीडिया के ज़रिए से लोगों तक खबर पहुंचाई गई, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप तक बात पहुंची कि फ़लाँ फ़लाँ आलिम वहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, फ़लाँ फ़लाँ टाइम में वहाँ पर गुस्ल होगा, फ़लाँ टाइम में कुल शरीफ का फातिहा होगा। तमाम लोग हुजूम बांधे, सब लोगों को टाइम मालूम चला, तो हम लोग जाकर के पहुँचे, सही टाइमिंग के साथ पहुँचे और वहाँ पर हमने तमाम उलमाए किराम की बयानात सुने, हम सारे मिल कर के वहाँ पहुँचे। लेकिन मेराज की रात, तवज्जो है हज़रात, मेराज की रात है, रहमतों की बरसात है। मेरे नबी मस्जिद हराम से बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा गए। मस्जिद अक्सा अकेले पहुँचे, कोई प्रचार नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई बताने वाला नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन तमाम अंबिया किराम कहते हैं आज मस्जिद अक्सा चलो, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ ला रहे हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अपनी कब्र में, किसी ने नहीं बताया आदम सफ़ीउल्लाह को, किसी ने नहीं बताया नूह नजीउल्लाह को, किसी ने नहीं बताया इस्माइल ज़बीहुल्लाह को। तमाम अंबिया को सही डेट का मालूम हो जाना, सही वक्त का मालूम हो जाना, अपने कब्रों में रह करके, ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, जब तमाम नबियों के इल्म गैब का आलम ऐसा है तो नबियों के सरदार के इल्म गैब का आलम कैसा होगा, नबियों के सरदार के इल्म गैब का आलम कैसा होगा। तवज्जो है हज़रात, मेराज की बात सुनते चलो। मेराज के रात के वाक़या को दिल से लगाकर दिल को मुनव्वर करते चलो और ईमान भी ताज़ा करते चलो। अब आते हैं कुछ लोग मेरे नबी को अपने तरह भी समझते हैं, उनके लिए भी एक मसला। हम लोग नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, तवज्जो है हज़रात। अच्छा दोस्तों, आप नमाज़ कब पढ़े? जब आपको आपके माँ बाप ने नमाज़ पढ़ना सिखाया। अली मोहल्ला के लोग बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं माशाल्लाह। ये बात अलग है कि दूसरे जगह के लोग नहीं सिखाते हैं, वरना फिर मस्जिद में आते हैं, मुअज्जिन साहब जैसे लोगों को देख करके नमाज़ सीखना पड़ता है। वरना फिर कुछ लोग और भी ज़्यादा दीनदार हैं जो मदरसे में भेज करके अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं। तो बहरकैफ जब हमको नमाज़ सिखाया जाता है, मिलता है, तब जा कर के हम नमाज़ पढ़ते हैं। उम्मती के लिए यही रूल्स है, तवज्जो है ज़रा, उम्मती के लिए यही रूल्स है। सिखाया जाता है, नमाज का तरीका बताया जाता है तो नमाज पढ़ाया जाता है। लेकिन मस्जिद अक्सा में मेराज की रात मेरे नबी ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ा दिया, जबकि अब तक नमाज मिली भी नहीं है। लामका में नमाज मिलने वाली है, आसमानी दुनिया में नमाज मिलने वाली है। नबी ने इधर नमाज पढ़ा दिया, तो लोगों जिनको नमाज मिलने के बाद नमाज पढ़े उन्हें उम्मती कहा जाता है, और जो बगैर नमाज पाए भी पढ़ा दे उसे नबी कहा जाता है। तो एक उम्मती अपने नबी के बराबर कभी नहीं हो सकता है।